प्रैक्टिकल ही है जो हमने कर लिया है, तो 2 and 3 is only remaining and joins is remaining in RDBMS. Unit 2 I'll be starting from today. लेकिन उससे पहले let me just ask you, do you people have any doubts regarding any topics taught till now? Any doubts? Or if you feel that I should repeat any particular topic again, then just tell me. I can do it right now also. Yes, anyone? I hope we are not going fast. Yes, anyone think we are going fast? Yes, anyone, do you want any topic to be repeated again? किसी में नहीं समझ में आया प्रैक्टिकल या थियोरी, एनीथिंग? कुछ नहीं समझ में आया, प्लीज यू कैन राइट इन चैट ऑल्सो. If you want me to repeat any topic, you can write in chat right now. सब कुछ समझ में आ रहा है? Fine then. Okay. So let's start with our unit 2, that is entity relationship model. Entity relationship model we already discussed in short. एक overview हमने ले लिया था in unit 1, that what is entity relationship model. Can anyone tell me what is entity relationship model? क्या करते हैं उसमें? Yes, anyone? What is entity relationship model? Yes, quick. पढ़ा था हमने. What is entity relationship model? कैसे यूज करना है ये मॉडल, या ये मॉडल कब क्या काम आता है, कैसे यूज करना है उसको? जस्ट टेल मी. कीपिंग क्वाइट वोंट वर्क. चलो बोलो. विक्रम पटेल. विक्रम. यस विक्रम. What is entity relationship model? विक्रम. हेलो विक्रम. याद નથી. ओ ग्रेट. ग्रेट आंसर. चैत्य. शाह चैत्य. Yes, Chaitya. What is entity relationship model? Chaitya, can you hear me? Unmute your mic. Chaitya, unmute your mic. Can you hear me? I think he is not there. Rushi? Yes, Rushi? Yes, ma'am. What is entity relationship model?
एट्रीब्यूट्स बेस्ड रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट्स पर काम करिए, ER मॉडल्स यूज થાય, ER ડાયાગ્રામ્સ હા, યુઝ થાય. ER ડાયાગ્રામ યુઝ થાય. અચ્છા, ER ડાયાગ્રામમાં શું હોય, કઈ રીતે તમે રિપ્રેઝેન્ટ કરો છો? એક રેક્ટેંગલ એન્ટિટી રિપ્રેઝન્ટ કરે, ડાયમંડ રિલેશનશિપ, ઓવલ એટ્રીબ્यूट. Okay, fine. Okay, fine. So let's just proceed with entity relationship model. Okay. Uh, so we already discussed what is entity, what is entity set. Acha, can anyone tell me what is entity set? Can anyone just tell me what is entity set? एंटिटी वी पीपल नो, एंटिटी सेट भी मैंने आगे एक बार डिस्कस किया है. एंटिटी वी पीपल नो कि कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग, कंसेप्ट, इवेंट्स एक्सेट्रा, जिसके बारे में वी आर collecting the data or storing the data is called an entity. Okay, but what is an entity set? Yes, anyone, what is an entity set? Anyone? Anyone? What is an entity set? Similar type entities. Sorry? Similar type entities. Serial type. Same type entities. Similar type of entities. Similar type of a set of or a group of similar types of entities are called entity set. Similar type of entities grouped together is called an entity set. Exactly. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एम्प्लॉयज की बात करूं तो एक एम्प्लॉय टेबल है, उसमें एक एंटिटी है एम्प्लॉय E101 जिसका आईडी है E101. नाउ इफ आई टॉक, दिस इज एन एंटिटी. अभी इफ आई टॉक अबाउट all the employee, the data of all the employees stored in the employee table, that is E101, 102, 103, तो इन सबका ग्रुप, that becomes the entity set. So a group of similar kind of entities becomes the entity set. Okay. An entity is set is a set of entities of the same type. Attributes we know, relationship we know. This is a simple ER diagram specifying the ER model, where there is a entity called student, there is another entity called college, and student और college के बीच में एक relationship है, student study in college. Okay, जिसमें student में student ID है, name है, address है, college में college ID है, name है. Now talking about mapping constraints and mapping cardinalities. This is a very important topic. Okay. An ER schema may define certain constraints to which the contents of database must conform. Cardinalities means what? So there can be 4 types of relationship. दो tables के बीच में कुछ relationship होता है, लेकिन that relationship can be one of these 4. It can be a one-to-one relationship, one-to-many relationship, many-to-one relationship और many-to-many relationship. अभी ये है क्या one-to-one, one-to-many? तो सपोज करो यहाँ पर दिस इज एंटिटी ए, दिस इज एंटिटी बी. एंटिटी ए का एक रिकॉर्ड इज एसोसिएटेड विथ बी का एक रिकॉर्ड. सारे सब में ही ऐसा है कि एक रिकॉर्ड ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ वन रिकॉर्ड ऑफ बी, then it is called one to one relationship. Then it is called one to one relationship. For example, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आई थिंक है. ओके, तो मैनेजर मैनेजेस ब्रांच. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल. अभी सपोज करो यहाँ पर ए में हमारे पास मैनेजर्स की डिटेल्स है, यहाँ पर ब्रांच की डिटेल्स है. ओके, बी हमारा जो टेबल ए है दैट इज मैनेजर का टेबल है, और टेबल बी है वो ब्रांच का टेबल है. ओके,
ब्रांच के टेबल में ब्रांच B1, B2, B3, B4, B5 ऐसे करके सारे डेटा होंगे, और मैनेजर में मैनेजर के सारे डेटा होंगे, जितने भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं वो। अभी रूल है कि एक मैनेजर एक ही ब्रांच को मैनेज कर सकता है, फाइन। तो यहाँ पर हर एक मैनेजर के सामने कितनी ब्रांच होगी? सिर्फ एक ही ब्रांच होगी। अब ये रिलेशनशिप कैसे हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है कि टेबल ए जो है उसमें मैनेजर M1, M2, M3, M4 जो भी है, उसके सामने इसी टेबल में ब्रांच का भी एक कॉलम हो, ब्रांच B1, B2, B3, B4, B5, ओके। और उसको हम फिर प्राइमरी फॉरेन की दे सकते हैं बी टेबल के साथ। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ब्रांच जो है B1, B2, B3 उसके साथ दूसरी एक कॉलम बी टेबल में है, जिसमें हम मैनेजर स्पेसिफाई कर रहे हैं M1, M2, M3, M4। लेकिन एट द एंड होगा क्या कि एक मैनेजर के लिए एक ही ब्रांच है, एक मैनेजर एक ही ब्रांच से एसोसिएटेड है। ऐसा नहीं है कि ये मैनेजर A1 है वो B2 भी कर रहा है और B1 भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड 1-to-1 रिलेशनशिप। 1-to-many रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप मतलब एक रिकॉर्ड इज एसोसिएटेड विथ मोर देन वन रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल। One entity is associated with more than one entities in another table. For example, ये A टेबल है वो है कस्टमर का टेबल, और B टेबल है वो अकाउंट्स का टेबल है, जो कस्टमर का अकाउंट होता है वो। तो यहाँ एक कस्टमर इज एसोसिएटेड विथ मोर देन वन अकाउंट। जैसे ये कस्टमर A1 है, उसके दो अकाउंट्स है, B1 भी एक अकाउंट है और B2 भी एक अकाउंट है। वैसे ही A2 का भी एक से ज्यादा अकाउंट है, A3 में सिर्फ एक ही अकाउंट है। तो मतलब अगर आपको एक भी ऐसी एंटिटी मिलती है जिस विच इज एसोसिएटेड टू मोर देन वन एंटिटी इन अनदर टेबल, देन इट इज कॉल्ड 1-to-many रिलेशनशिप। उससे उल्टा मैनी टू वन रिलेशनशिप, ओके। यहाँ का एक रिकॉर्ड इज एसोसिएटेड विथ मोर देन वन रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मतलब एक अकाउंट एक से ज्यादा कस्टमर होल्ड कर सकता है, या एक कस्टमर एक से ज्यादा अकाउंट होल्ड कर सकता है। मेरी मीनिंग समझो। अकाउंट है 1, 2, 3। यहाँ ए जो टेबल है दैट इज कस्टमर टेबल, बी जो टेबल है वो अकाउंट टेबल है, ठीक है। कस्टमर टेबल में है कस्टमर A1, A2, A3, A4, और यहाँ पर अकाउंट्स के नंबर है बी टेबल में, ठीक है। ये जो कस्टमर है, एक कस्टमर का एक से ज्यादा अकाउंट हो सकता है, तो ये क्या हो गया? 1-to-many हो गया। एक कस्टमर का एक से ज्यादा अकाउंट, जैसे एक कस्टमर है A1, उसका एक से ज्यादा अकाउंट है, उसका अकाउंट नंबर B1 भी है और अकाउंट नंबर B2 भी है, तो ये हो गया 1-to-many। अभी यहाँ पर जो एक अकाउंट है B1, उसका एक से ज्यादा कस्टमर है, मतलब ये जॉइंट अकाउंट है, एक से ज्यादा कस्टमर उसके ओनर है। तो ये B1 जो है उसका ओनर A1 भी है और ये A2 भी है, तो ये क्या हो गया? मैनी टू वन रिलेशनशिप। तो जहां पर ये 1-to-many भी है और मैनी टू वन भी रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को आप बोलोगे मैनी टू मैनी। उस रिलेशनशिप को आप बोलोगे मैनी टू मैनी। तो दीज आर द 4 टाइप ऑफ कार्डिनलिटीज, 4 type of relationship that can exist between two tables: 1-to-1, 1-to-many, many-to-one and many-to-many। ओके, यहाँ पर उसके एग्जाम्पल है। अच्छा, आपको ER डायग्राम में अगर स्पेसिफाई करना है तो वो कैसे करोगे? तो अगर 1-to-1 है, जब भी रिलेशनशिप है, अभी ये रिलेशनशिप है तो डायमंड वाला सिंबल तो आएगा ही। तो जब डायमंड वाला सिंबल कर रहे हो और दो टेबल के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप है, तो आपको दोनों साइड एरो लगाने हैं। अगर मैनी टू वन है तो जहां मैनी है वहां एरो नहीं आएगा, वन है वहां एरो आएगा। यहाँ 1-to-many है तो जहां वन है वहां एरो आएगा, मैनी है वहां एरो नहीं आएगा, फाइन। यहाँ दोनों साइड पे एंटिटीज आएगी, एक साइड पे यहाँ एंटिटी आएगी, एक साइड पे यहाँ एंटिटी आएगी। और मैनी टू मैनी है वहां कोई एरो नहीं आएगा, मतलब जहां वन है वहां एरो आएगा, मैनी में एरो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, one manager manages one branch, then one branch holds many account। एक ब्रांच में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, तो यहाँ वन है इसलिए यहाँ एरो है। many customer owns many accounts, फाइन। ये many to many रिलेशनशिप जो मैंने आपको समझाया
वो है, राइट। दीज आर द, अभी ये 1 to many को उल्टा कर दूं तो many to 1 हो जाएगा, यहाँ अकाउंट लेके आऊं और यहाँ ब्रांच लेके जाऊं तो many to 1 हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? ओके, अभी कीज की बात करते हैं। ओके, तो सुपर की पता है किसी को? व्हाट इज अ सुपर की? एनीवन सुपर की नाम सुना है क्या? सुपर की हाँ। સાંભળ્યું છે? ઓકે, તો શું છે સુપર કી? આપણે પ્રાઇમરી કી સાંભળ્યું, ફોરેન કી સાંભળ્યું, व्हाट इज अ सुपर की? यस एनीवन? कुछ भी गेस कर सकते हो आप, यू कैन एटलीस्ट गेस व्हाट इज अ सुपर की। यस एनीवन? बोलो बोलो, व्हाट इज अ सुपर की? F5 में सुना था क्या ये कंसेप्ट? F5 में ये कंसेप्ट आया था क्या सुपर की? एनीवन? हेलो, एटलीस्ट प्लीज रिस्पॉन्ड करो, आप कुछ भी आंसर दो यार, ऐसे आप चुप रहोगे मुझे कैसे पता चल रहा है कि समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, पता है नहीं पता है? हाँ बोलो, आता है तो हाँ, नहीं आता है तो एटलीस्ट ना तो बोलो, या नहीं पढ़ा है तो ना बोलो एटलीस्ट। Was there any topic like super key in FY when you studied at DBMS? Yes, anyone? हेलो, सिर्फ नाम आया था, सॉरी, टाइटल सिर्फ टाइटल? टाइटल आया था, टाइटल आया था थियरी लेकिन नहीं आया पढ़ा था, तो? थियरी नहीं हाँ, थी। ऐसा कैसा सुपर की? बस એવું અંદર શું છે સુपर की તે કોઈ જાણ્યું પણ नहीं? आपने वो पढ़ के रख दिया, किसी ने मतलब पढ़ा नहीं कि सुपर की है क्या? ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज अ सुपर की। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Okay. So a super key is set of one or more attribute which collectively allow us to identify uniquely an entity in the entity set. ऐसी की जो आपको आपकी आपके जो टेबल है उसमें कोई भी एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करे, दैट इज द सुपर की। तो क्वेश्चन ये आएगा, तो प्राइमरी की भी तो यही काम करती है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, तो डिफरेंस क्या हुआ सुपर की और प्राइमरी की में? तो डिफरेंस ये है कि सुपर की में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल ले लो, स्टूडेंट टेबल ले लेते हैं। अभी स्टूडेंट टेबल में मेरे पास 4 फील्ड्स है, स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर, नेम, सिटी, कॉन्टेक्ट नंबर। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर, नेम, सिटी, कॉन्टेक्ट नंबर, ये 4 मेरे पास फील्ड्स है। प्राइमरी की क्या बनाओगे? प्राइमरी की क्या बनाओगे इसमें? यस एनीवन? यस एनीवन? प्राइमरी की क्या बनाओगे? हेलो, जो भी फील्ड यूनिक होगी जिसकी वैल्यू रिपीट नहीं होगी उसको प्राइमरी की ये बनाएंगे। બધું दिख रहा है, दैट इज द थियोरी, दैट आई नो, बट मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसमें मुझे बताओ कि कौन सी फील्ड को बनाओगे। सपोज करो, चलो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, एक स्टूडेंट टेबल है, मैं चैट में लिख रही हूँ, उसमें कौन कौन सी फील्ड है? स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर है, नेम है, सिटी है, सपोज ईमेल है उसका साथ में। ओके, एनरोलमेंट नंबर। चलो, दीज आर द फील्ड्स। ओके, तो आप क्या बोल रहे हो? एनरोलमेंट नंबर को हम प्राइमरी की बनाएंगे, क्यों? बिकॉज हर एक
हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ एनरोलमेंट नंबर होगा, तो वो नॉट नल वाला भी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहा है, और हर एक स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर यूनिक होगा, तो वो यूनिक वाला कंस्ट्रेंट भी हो रहा है, तो हम एनरोलमेंट नंबर को हम प्राइमरी की बना रहे हैं। दिस इज करेक्ट। ओके, तो दिस इज अ प्राइमरी की। सुपर की क्या है? तो सुपर की में प्राइमरी वाला की तो प्राइमरी वाला एट्रीब्यूट तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा एट्रीब्यूट भी होता है। अगर मैं ये बोलूं कि एनरोलमेंट नंबर, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, हाँ, एनरोलमेंट नंबर 123 जो स्टूडेंट है उसकी बात कर रही हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। 123, क्योंकि एक ही स्टूडेंट का 123 एनरोलमेंट नंबर होगा। अभी सपोज मैं बोल रही हूँ कि एनरोलमेंट नंबर 123 जिसका नेम ये है, जो ये सिटी में रहता है और उसका ईमेल आईडी ये है, उसकी बात कर रही हूँ, तो भी समझ में आ जाएगा कि किस स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। फाइन। तो सुपर की यही काम करता है, सुपर की यही काम करता है। एक सेकेंड, हाँ। सो सुपर की क्या करता है कि जो प्राइमरी की, जो आपका यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है जो कॉलम, वो तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। ओके, और वो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स के साथ मिलके इट आइडेंटिफाइज अ कॉलम। तो अभी हर इट आइडेंटिफाइज द यूनिक एंटिटी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? हर एक टेबल में प्राइमरी की हो ऐसा जरूरी नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ, जस्ट टेल मी इज इट ट्रू और नॉट। इन एवरी टेबल देयर विल बी अ प्राइमरी की, कंपल्सरीली वो प्राइमरी की होगी 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 ही उसमें। जरूरी है या नहीं है ऐसा? हर एक टेबल में प्राइमरी की होगी ही। इज इट ट्रू और फॉल्स? मतलब हर एक टेबल में एटलीस्ट ऐसा एक कॉलम तो होगा ही जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे और नॉट नल हो। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। किसी को लगता है फॉल्स? किसी को लगता है फॉल्स? ट्रू? पक्का? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक टेबल में इट्स नॉट ट्रू दैट ऐसी एक कॉलम हुई। वो तो अभी तक हमने एग्जाम्पल्स ऐसे लिए हैं कि स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, जिसका कोई पर्टिकुलर यूनिक नंबर है जिससे आइडेंटिफाई हो जाए, लेकिन इट्स नॉट ट्रू कि वो प्राइमरी की, मतलब हर एक टेबल में ऐसी कॉलम हुई जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। इट्स नॉट ट्रू। इन दैट केस व्हाट वी डू, वी गिव एक ऑटो नंबर, एक सीरियल नंबर हम लोग जनरेट करते हैं, अगर ऐसा कुछ हमारे पास कॉलम नहीं है तो, और उसको फिर प्राइमरी की बनाते हैं। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, हर एक टेबल में सुपर की है, सुपर की होगी ही। इज इट ट्रू और फॉल्स? हर एक टेबल में सुपर की विल बी देयर। ट्रू और फॉल्स? हर एक टेबल में सुपर की होगी ही। ट्रू और फॉल्स? सुपर की का मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आता? आई कैन एक्सप्लेन वंस अगेन। यस एनीवन? हर एक टेबल में इट इज कंपल्सरी कि सुपर की होगी ही। यस? हाँ हेलो। कृष्णाकांत, हाँ बोलो। हाँ मैम, एक बार फिर से समझा दो ना, सुपर की का थोड़ा समझ नहीं आया। ओके, प्राइमरी के क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर कॉलम है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। सुपर की क्या है? सुपर की में वो प्राइमरी की वाली कॉलम तो होती ही है, या तो फिर एक से ज्यादा ऐसी कॉलम होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। उसमें ऐसी भी कॉलम होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट आपको चैट में लिख के दिया, स्टूडेंट का सिटी। अभी स्टूडेंट का सिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो दैट इज एन एक्स्ट्रा कॉलम। हमें सिर्फ रोल नंबर से या एनरोलमेंट नंबर से पता चल रहा था स्टूडेंट का, ठीक है, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया
सिटी, एक और ऐड कर दिया नेम, एक और ऐड कर दिया ईमेल, तो दिस बिकम्स योर सुपर की। ओके, तो कंक्लूजन ये है कि हर एक टेबल में एटलीस्ट, मतलब हर एक टेबल में एक सुपर की होगा ही, और वो सुपर की क्या होगा? द कॉम्बिनेशन और द कलेक्शन ऑफ ऑल द कॉलम्स। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल द कॉलम्स। अभी सपोज करो मैं एक और आपको टेबल देती हूँ स्टूडेंट, जिसमें है स्टूडेंट का क्लास, डिवीजन, रोल नंबर, नेम एंड ईमेल। चलो, अभी ये दूसरा टेबल है स्टूडेंट का, जिसमें क्लास है, डिवीजन है, रोल नंबर है, नेम है, ईमेल है। इसमें आप कौन सा प्राइमरी की लगाओगे? इसमें आप प्राइमरी की क्या लगाओगे? रोल नंबर। इज इट? रोल नंबर से हो जाएगा? क्यों? सपोज करो क्लास है SY, तो SY में रोल नंबर, SY में जो रोल नंबर है 1, वो 2 बार आएगा। SY में रोल नंबर 1 2 बार आएगा। डिवीजन 1 का भी कोई एक रोल नंबर 1 होगा, डिवीजन 2 का भी रोल नंबर 1 होगा। वैसे ही हर एक क्लास में एक कोई तो रोल नंबर 1 होगा ही। क्लास को लगाओगे, क्लास को आप लगाओगे। क्यों? स्टूडेंट का टेबल है तो क्लास कितनी बार वहां रिपीट होगा? FY SY, हर एक स्टूडेंट का क्लास होगा तो वो तो रिपीट होगा, तो दैट क्लास कैन नॉट बी द प्राइमरी की। ईमेल कैन ऑल्सो नॉट बी देयर। व्हाई? बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का ईमेल आईडी नहीं है, तो वहां नॉट नल, वहां नल जाएगा। तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का ईमेल आईडी है ही नहीं, अभी तक क्रिएट ही नहीं किया है, तो वहां नल जाएगा। तो क्या करोगे अब? व्हाट यू विल डू इन दैट केस? આની અંદર બે રીતે કદાચ પોસિબલ હોઈ શકે. એક તો આપણે हाँ, બીજે એક ફિલ્ડ એડ કરી દઈએ, લાઈક हम्म, સ્ટુડન્ટ આઈડી જે યુનિક જનરેટ થાય એને પ્રાઇમરી કી આપી દઈએ, અથવા તો સુપર કી લઈ લઈએ કે આ બધાનું કોમ્બિનેશન યુનિક જ આવશે. ओके। तो यहाँ पर अभी आपको कुछ कंसेप्ट समझाती हूँ। जब अवे आप एकदम प्रॉपरली सांभळजो, ये ठीक से सुनोगे तो ही चीजें समझ में आएगी। जब मैं एक से ज्यादा कॉलम्स को कंबाइन करके एक की बनाती हूँ, एक से ज्यादा कॉलम्स को, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई एक सिंगल कॉलम नहीं है जो प्राइमरी की मैं जिसे दे सकूं, ठीक है। एक से ज्यादा कॉलम को मैं कंबाइन कर रही हूँ और उससे मैं यूनिकली आइडेंटिफाई अगर कर पाऊं, तो दैट बिकम्स अ कंपोजिट की। दैट बिकम्स अ कंपोजिट की। अभी तक हम सुपर की पर नहीं आए हैं। तो इसमें आप कंपोजिट की किसे बनाओगे? इसमें आप कंपोजिट की किसे बनाओगे? फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल रही हूँ क्लास SY, सपोज क्लास और रोल नंबर को अगर मैं मिक्स करके कंपोजिट की बनाऊं तो हो जाएगा? मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊंगी किसी भी स्टूडेंट को? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं SY रोल नंबर 1, तो समझ में आ जाएगा कौन से स्टूडेंट की बात कर रही हूँ? यस और नो? समझ में आएगा? प्लीज आंसर। નહીં नहीं આएगा. आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसमें भी डिवीजन है 2, डिवीजन 1, डिवीजन 2। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं रोल नंबर एंड नेम, अगर मैं ले लूं रोल नंबर 1, नेम अक्षय, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा ऐसे क्लासेस है जिसमें रोल नंबर 1 में अक्षय नाम का ही कोई स्टूडेंट हो, तो ये भी नहीं हो सकता है। मैं डिवीजन और रोल नंबर ये ले सकती हूँ क्या कि रोल नंबर 1 डिवीजन 2, तो भी नहीं पता चलेगा रोल नंबर 1 डिवीजन 2, लेकिन कौन से क्लास की बात कर रही हूँ आई डोंट नो। तो अगर मैं ये ले लूं तो SY डिवीजन 1 रोल नंबर 1, तो समझ में आ जाएगा? SY डिवीजन 1 रोल नंबर 1, तो समझ में आ जाएगा? હા. यस, तो समझ में आ जाएगा। मतलब ये मेरा क्या हुआ? मिनिमल प्राइमरी की हुआ। मतलब मिनिमम मुझे ये 3 कॉलम्स तो चाहिए ही जिसे कंबाइन करके मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। मिनिमम मुझे ये 3 कॉलम्स चाहिए जिसे मैं कंबाइन करके आइडेंटिफाई कर सकूं मेरा यूनिक रिकॉर्ड। फाइन, तो दिस बिकम्स माय कंपोजिट की।
कंपोजिट की मतलब एक से ज्यादा कॉलम को आप जब मिक्स कर रहे हो और वो आपका प्राइमरी की बन रहा है तो दैट बिकम्स अ कंपोजिट की। ओके, नाउ अगर मैं ये बोलूं कि SY डिवीजन 1 रोल नंबर 1 नेम अक्षय, तो भी समझ में आ रहा है कौन से स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। मतलब इसमें मेरा वो 3 एट्रीब्यूट्स तो है ही, लेकिन उसमें एक और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी है। अभी एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करने से मुझे कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगा। एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड किया फिर भी वो यूनिकली आइडेंटिफाई तो करेगा ही। तो सुपर की क्या है? द की विच यूनिकली आइडेंटिफाइज योर records in your table, but it contains the extra attributes. It contains the extra attributes. अभी वो कैसे पता चलेगा कि it contains the extra attributes? तो आपको देखना है, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि this is your super key, तो आपको देखना है कि इसमें से ऐसा कौन सा ऐसा कुछ है, ऐसा कोई कॉलम जो निकाल दूं फिर भी मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। हाँ, अगर आंसर आता है yes, then this is your super key. अगर आंसर आता है yes कि यस इसमें ऐसा एक आध कॉलम भी है जो मैं निकाल दूं फिर भी मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं मेरे रिकॉर्ड्स को, देन यू कैन टेल कि हाँ ये सुपर की है। अब मैं ये बोलूं कि क्लास डिवीजन रोल नंबर, तो दिस इज नॉट योर सुपर की, दिस इज नॉट द सुपर की। व्हाई दिस इज नॉट अ सुपर की? बिकॉज इसमें ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है जिसको निकालो फिर भी आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ अपने रिकॉर्ड्स को। फाइन, तो अब मैं ये बोल रही हूँ कि हर एक टेबल में सुपर की हो ऐसा जरूरी है? तो यस इट इज ट्रू, हर एक टेबल में सुपर की होता है। कैसे होता है? तो हर एक टेबल में जितनी भी कॉलम है, जब सपोज ये टेबल है, इसकी सारी कॉलम्स को मैं मिला दूं तो दैट बिकम्स अ सुपर की। सारी कॉलम्स को अगर मैं बोलूं कि क्लास SY डिवीजन 1 रोल नंबर 1 नेम अक्षय ईमेल abc@gmail.com, तो समझ में आ जाएगा किसकी बात कर रही हूँ। तो हर एक टेबल में ऐसा सब कॉलम को आप ऐड कर दोगे, सब कॉलम को आप मिक्स करके फिर बोलोगे तो कोई भी रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। फाइन, तो इन ऑल टेबल्स सुपर की, एक सुपर की तो होगा ही। फाइन, क्लियर? यस यस, क्लियर? ओके, अब कैंडिडेट की बात करते हैं। तो कैंडिडेट मतलब क्या? आपने शायद इलेक्शन में सुना होगा कैंडिडेट्स। व्हाट आर द कैंडिडेट्स? कैंडिडेट्स मतलब क्या? इलेक्शन में वो सांभळ्યું હશે कैंडिडेट। अभी की बात नहीं करते, सिर्फ कैंडिडेट का मतलब समझाओ। कैंडिडेट मतलब क्या? यस yes, anyone? What is a candidate? અરે તમારામાંથી બી CRLR ના ઇલેક્શન કોઈ લડ્યું હશે ને, કર્યું હશે ને, ઉભા રહ્યો હશે ને वो એમાં ઇલેક્શનમાં, સ્ટુડન્ટ ઇલેક્શનમાં? બોલો, કેન્ડિડેટ્સ મીન્સ વોટ? યુ વર ધ કેન્ડિડેટ. ઉમેદવાર, ઉમેદવાર મીન્સ કોને ઉમેદવાર બનાવી શકાય? જે એલિજિબલ હોય, રાઈટ? તો પહેલા તો તમારા કઈ એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા ચેક થતા હોય કે આ બનવા માટે એલિજિબલ છે કે નથી, રાઈટ ઓર રોંગ? राइट और रॉन्ग? और मतलब फर्स्ट स्टेज इज कि आपकी एलिजिबिलिटी चेक होती है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। ओके, उसमें अभी जितने भी एलिजिबल है सबको तो हम नहीं बना सकते हैं। ओके, सबको तो नहीं जिताओगे आप। ओके, तो पहले सारी एलिजिबिलिटी चेक करके आप कैंडिडेट्स खड़े करते हो और उन कैंडिडेट्स में से फिर वो जो बेस्ट होता है, ओके, जो भी क्राइटेरिया होगा उसके बेसिस पे जो बेस्ट होता है वो बन जाता है। फाइन, वैसा ही यहाँ डेटाबेस में होता है। यहाँ पर जैसे मैं जब क्वेश्चन करती हूँ कि इसमें प्राइमरी की कौन सी होगी, तो कोई बोलता है ईमेल, कोई बोलता है रोल नंबर, तो दीज बिकम्स द कैंडिडेट्स। ये कैंडिडेट्स है, मतलब इनमें कुछ कुछ एलिजिबिलिटी है, कुछ कुछ एलिजिबिलिटी है प्राइमरी की बनने के लिए। अभी यहाँ रेस किसकी चल रही है? प्राइमरी की बनने के लिए। जैसे GS और CRLR की आप लोगों की रेस चलती है, वैसे यहाँ कंपटीशन किसकी है? प्राइमरी की बनने के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी की बनने के लिए पहले तो हम सब कॉलम्स में से सिलेक्ट करेंगे कि कैंडिडेट्स कौन है।
वो कैंडिडेट्स कैसे पता चलेंगे? तो किसी में ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है या नॉट नल है, ये वो। चलो, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स कौन है? तो यहाँ पर कैंडिडेट्स है, एक तो है रोल नंबर, एक है ईमेल, एक है रोल नंबर प्लस डिवीजन प्लस क्लास, तीनों को मिला के ये सारे कैंडिडेट्स है। फाइन, ओके। फिर हम चेक करते हैं कि इसमें से बेस्ट कैंडिडेट कौन है। तो व्हेन वी चेक वी कम टू नो कि सिर्फ रोल नंबर तो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सिर्फ रोल नंबर यूनिक नहीं हो रहा है। सबका रोल नंबर होगा लेकिन यूनिक नहीं होगा। देन ईमेल, तो ईमेल में हमें लगा कि अरे किसी किसी का ईमेल तो होगा नहीं, तो उसमें नल चला जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट वन। फिर वी केम टू नो कि ये तीनों को अगर मिला ले, हाँ, तो दिस इज द बेस्ट वन, तो ये जो कैंडिडेट है दिस इज द बेस्ट फॉर प्राइमरी की। ओके, तो आपकी जो सुपर की है, सुपर की मतलब सारी मिला के, उसमें से जो बेस्ट बन सकते हैं उसको आप कैंडिडेट सिलेक्ट करोगे, और फिर उन कैंडिडेट्स में से जो सबसे बेस्ट होगा दैट विल बिकम द प्राइमरी की। ओके, फाइन। तो नाउ यू रीड दिस। अभी ये सारा पढ़ो। A super key is a set of one or more attributes which collectively allow us to identify uniquely an entity in the entity set. For example, in entity set customer name and ID is a super key. अभी हमें पता है कस्टमर आईडी से भी हम यूनिकली कर सकते हैं, लेकिन उसमें साथ में हमने नेम भी रख दिया है, एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, so that becomes a super key. Note that customer name alone is not able to distinguish customers uniquely, as two customers could have the same name. A super key may contain extraneous attributes. ये this is very important. Super key में extra attributes हो सकते हैं, and we are often interested in the smallest super key. लेकिन हम हमेशा वो सारे जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स है उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट सुपर की चाहिए, मतलब उसमें से जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स है वो निकाल देना है। तो जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स निकाल देते हैं और जो वो एट्रीब्यूट बचते हैं जो यूनिकली कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड कैंडिडेट की। A super key for which no subset is a super key is called a candidate key. मतलब कैंडिडेट की वो की है जिसमें अब ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है जो आप निकाल पाओ और वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, तो दैट बिकम्स द कैंडिडेट की। In the above example, customer ID is a candidate key as it is a minimal and uniquely identifies a customer entity. प्राइमरी की क्या है? तो प्राइमरी की भी एक कैंडिडेट की ही था जिसको हमने बाद में सिलेक्ट किया एज अ प्राइमरी की। फाइन, तो प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की चोजन बाय द डेटाबेस डिजाइनर टू आइडेंटिफाई एंटिटीज इन एन एंटिटी सेट। ओके, अभी ये वीक एंटिटी सेट ये सब हम आई थिंक वी शुड बी डूइंग इट इन नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर है अभी तक? यस एवरीवन, आर यू क्लियर अबाउट ऑल दिस कीज? एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कंपेयर सुपर की, प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की, तो आपको पता होना चाहिए सबके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, फाइन। इफ नो डाउट्स आर देयर देन वी कैन लीव द मीट नाउ, वी कैन लीव द मीट।